Hello and very good morning to all my lovely kids. How are you? Doing well? Okay. Today is our English 1 period. Let's start our today's session. Students, today we will start chapter number 11. Who likes the rain? Who likes the rain? Basically, this is a poem written by Clara Doty Betts. This is a poem written by a poet Clara Doty Betts. ये एक पोयम है जो क्लोरा डॉटी बेट्स द्वारा लिखी गई है. इसे शुरू करने से पहले इसके आगे एक पॉन्डर एक्सरसाइज है, वो हम देख लेंगे. सो स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड. चैप्टर नंबर 11. चैप्टर नंबर 11. हु लाइक्स द रेन? हु लाइक्स द रेन? जैसा कि आपको इसकी हेडिंग से ही पता चलता है, दिस इज अ पोयम अबाउट हु लाइक्स द रेन. किसको बारिश पसंद है या किसको रेन पसंद है. उसको पोयम को स्टार्ट करने से पहले एक पॉन्डर एक्सरसाइज है. वी विल डू दिस एक्सरसाइज. यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. व्हाट इज द एक्सरसाइज? लेट्स सी. स्पॉट 5 डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पिक्चर. यहाँ पे आप देखेंगे 2 पिक्चर्स दिए हुए हैं. दूर से देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम है, पर इसके अंदर 5 डिफरेंसेस हैं. वो कौन से 5 डिफरेंसेस हैं? वी हैव टू, हमको उसको निकालना है और हमें बुक में टिक मार्क करना है. सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस गर्ल का रेनकोट रेड है और इस गर्ल का रेनकोट ब्लू है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस 1. ये रेड है, ये ब्लू है. ओके. उसी तरह से सेकंड डिफरेंस है, इस गर्ल ने इस डॉग को बांध के नहीं रखा है और इसने इस डॉग को इस चेन से बांध के रखा है. ये हुआ दूसरा डिफरेंस. तीसरा डिफरेंस आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे वाटर है, यहाँ पे नीचे वाटर नहीं है. ये हुआ थर्ड हमारा डिफरेंस. फोर्थ डिफरेंस हुआ, यहाँ पे इसके साथ लीव्स भी हैं, यहाँ पे इसके साथ लीव्स नहीं है. ये हुआ हमारा फोर्थ वाला डिफरेंस. ओके. और लास्ट डिफरेंस है, ये इसकी कैप रेड है और ये इसकी ब्लू है. ये हमारे 5 डिफरेंसेस हो गए जो इन दोनों पिक्चर्स में है. ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही फिनिश करना है. ओके. आप ध्यान से देखिए, ये किस जगह का सीन आपको नजर आता है. ये सीन भी एक रेनी सीजन का सीन है, जहाँ पे बच्चे रेनी सीजन का मजा लेते हुए आपको दिखाई देंगे. ओके चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द पोयम. ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल I will tell you the summary of this poem. Listen carefully. The poem tells us why the duck, the dandelions, the tree toad, the brook and a small boy called Ted like the rain. The duck says that the rain is equivalent to fun as it can make little tracks on the mud made soft by the rain. The dandelion likes the rain as it gives the flowers thirsty roots and the dry buds a new lace of life. The tree toads, on the other hand, does not mind the rain as a broad leaf save it from getting wet. The brook is very fond of the rain and wishes that it would never stop. This is because the raindrops would help it grow into a river and meet the sea. For Ted, rain is fun as he can run through the puddles and the runlets created by the rain.
wearing his boots and raincoat on his way to school. So children, this is the just a summary part of this poem. Let's start to recitate it. सबसे पहले हम इस पूरी पोयम को प्रोनाउंस करना और पढ़ना सीखेंगे. Then after teacher will explain you paragraph wise. Okay? First paragraph. Who likes the rain? Who likes the rain? I said. The duck, I call it fun, for I have my red rubbers on. They make a little three-toed track in the soft, cool mud. Quack, quack. Okay, this is a first paragraph of this poem. Next paragraph. I cried. The dandelion, I. My roots are thirsty. My buds are dry. And she lifted a tousled yellow head out of her green and grassy bed. Out of her green and grassy bed. Last paragraph, third paragraph, sorry. I hope 'twill pour. I hope 'twill pour. Purred the tree-toad at the grey bark door, for with a board leaf for a roof, I am perfectly waterproof. ओके, ये 3 पैराग्राफ्स हमने पढ़े. नेक्स्ट, फोर्थ पैराग्राफ. Sang the brook, I laugh at every drop, and wish they never need to stop, till a big, big river I grow to me and could find my way to the sea. Last paragraph. I shouted Ted, for I can run with my high top boots and raincoat on through every puddle and runlet and pool I find on the road to school. Okay, this completes our poem recitation part. This poem is written by Clara Doty Betts. Clara Doty Betts ये इस पोयम की पोएट हैं जिन्होंने ये पोयम लिखी है. शी वॉज अ वेरी फाइन इंग्लिश पोएट जिन्होंने इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों के लिए पोयम्स लिखी हैं, जिसमें से एक बहुत ही अच्छी ये पोयम है. अब हम इसको एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर बढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन पार्ट. बेसिकली दिस पोयम इज रिटन बाय क्लारा डॉटी. क्लारा डॉटी द्वारा ये पोयम लिखी गई है, जिन्हें बारिश बहुत पसंद थी और वो अपने एक्सपीरियंस नेचर से, डक से, फ्लावर्स से, फ्रॉग से पूछना चाहती हैं कि जब बारिश होती है तब उन्हें कैसा लगता है. ओके, तो पहला पैराग्राफ, जैसा कि मैंने आपको हर बार बताती हूँ कि पोएम्स जो है अलग अलग 4-4 लाइन के या 8-8 लाइन के पैराग्राफ्स में आती है. तो आज हम फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे. उसके लिए फिर से टीचर एक बार रीड कर रही हैं. आप अपनी बुक, वॉइस वाली बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 96 पे. Who likes the rain?
Who likes the rain? I, said the duck. I call it fun. रेन किसे पसंद है? रेन किसे पसंद है? जैसा कि मैंने बोला, ये पोएट बोल रही है, जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि डक, इस डक को भी रेन पसंद है। क्यों? For I have my red rubbers on. They make a little three-dot track in the soft cool mud. Quack quack. इस डक को भी रेन पसंद है क्योंकि इस डक के जो आप पैर देखेंगे वो एक शूज के जैसे हैं और वो जब सॉफ्ट मड में चलते हैं तो वहां पे वो निशान छोड़ते जाते हैं। यहाँ पे देखिए निशान छोड़ते जाते हैं। जब भी डक सॉफ्ट मड पे चलती है, बारिश की वजह से वो मड जो है, मिट्टी जो है सॉफ्ट हो जाती है और उसके ऊपर जब डक चलती है तो उसके पैरों के निशान जो हैं वो इस मड के ऊपर आ जाते हैं। फिर से एक बार देख लेंगे। I said the duck, I call it fun, for I have my red rubber on. They make a little three-dot track on this soft cool mud. Quack quack. तो डक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि बारिश के सीजन में जब बारिश होती है तो मिट्टी जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जब डक उस सॉफ्ट मिट्टी की तरफ चलती है तो उसके पैरों के निशान उसके ऊपर पड़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। I cried the dandelion. My roots are thirsty, my birds are dry. And she lifted a tousled yellow head out of her green grassy bed. डेडेलियन क्या होता है? डेडेलियन एक फ्लावर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्लावर है, ये रहा फ्लावर है। फ्लावर का नाम है डेंडेलियन। डेंडेलियन इज अ येलो फ्लावर जिसमें बहुत सारी पेटल्स होती हैं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं। तो इस डेंडेलियन फ्लावर को भी जो बारिश है वो बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? बिकॉज वो क्या कहता है फ्लावर? माई रूट्स आर थर्स्टी, माई बर्ड्स आर ड्राई। वो फ्लावर बोलता है कि मेरे रूट्स जो हैं, मेरे रूट्स जो हैं वो एकदम ड्राई हो गए हैं और मेरे जो बर्ड्स हैं उनके जो अंकुर हैं वो भी सूख गए हैं। तो जब बारिश आती है, बारिश की वजह से she lifted a troubled yellow head out of her green and grassy bed. पर जब बारिश आती है तब वो अपने पेटल्स को ऊपर ले लेता है और ग्रीन और ग्रासी बेड, जब बारिश आती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो वो अपने पेटल्स से वो ग्रीन ग्रास को जो एक बेड के समान लग रही है, चारों तरफ की हरियाली उसे देखता है। इसलिए भी उसको डेसीडिलियंस को वो बारिश बहुत पसंद है। थर्ड पैराग्राफ। I hope 'twill pour. I hope 'twill pour. Pert and tree-toad at the grey bark door, for which a board leaf for a roof. I am perfectly waterproof. Tree-toad मतलब ट्री-टोड यहाँ पे फ्रॉग को कहा गया है, तो यहाँ पे फ्रॉग को भी बारिश बहुत पसंद है। ट्विल, व्हाट यू मीनिंग बाय ट्विल? ट्विल मीनिंग होता है इट विल। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि फ्रॉग को भी ये बारिश बहुत पसंद है। वो क्या करता है फ्रॉग? एक ब्रॉड लीफ, एक चौड़ी, ब्रॉड मतलब चौड़ी बड़ी सी पत्ती लेके उसके नीचे वो खड़ा हो जाता है जब बारिश आती है, और वो ऐसे इमेजिन करता है कि वो एक वाटरप्रूफ फ्रॉग हो गया है क्योंकि बारिश उसे
भिगो नहीं सकती है, बारिश उसे नहीं भिगो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 99। फोर्थ पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे अब हम। सैंड द ब्रुक, ब्रुक ब्रुक मतलब क्या होता है, जब बारिश होती है तो पतली पतली नालियां जैसी बन जाती हैं, छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं खड्डे पड़ के, और उसमें पानी भर जाता है। ब्रुक मतलब होता है वह। Sang the brook, I laugh at every drop and wish they never need to stop, till a big river I grow to be and could find my way to the sea. यहाँ पे पोएट कह रही है कि जो बारिश की वजह से छोटी छोटी नालियां बन गई हैं, वो भी बारिश आने की वजह से बहुत खुश हैं। वो क्यों खुश हैं? वो इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जब बहुत सारी बारिश आएगी तो वो जो छोटी छोटी नालियां हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी नदियों में नदियां बन जाएंगी, और वो बड़ी बड़ी नदियां जो हैं आसानी से अपना रास्ता तय कर लेंगी एक सी में मिलने की तरफ। आपको पता होगा कि सारी नदियां जो हैं वो जाके समुद्र में मिलती हैं, तो वो जो छोटी छोटी नदियां हैं वो भी खुश हैं। क्यों खुश हैं? वो इसीलिए खुश हैं, वो चाहती हैं कि बारिश कभी बंद ही नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वो नदियां अपना रास्ता सी की तरफ आसानी से बना लें। ओके, लास्ट पैराग्राफ। I shouted Ted, for I can run with my high top boots and raincoat on through every puddle and runlet, the pool, find on the road to school. अब यहाँ पे जो पोएट है वो एक छोटे बच्चे टेड के रूप में बोल रही हैं कि उस टेड को भी बारिश बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि वो बारिश में अपने हाई टॉप बूट्स के साथ और रेनकोट्स के साथ हर पडल में खेलता हुआ, पडल मतलब छोटे छोटे खड्डे जो पानी से भर जाते हैं। आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी कभी कभी किया होगा, उन छोटे छोटे खड्डों के अंदर पानी भर जाता है रेनी सीजन में, उसमें खेलते कूदते हुए वो टेड जो है अपने स्कूल की तरफ बढ़ रहा है और रेन को एंजॉय करता जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 11। आपको होप करती हूँ पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।